अतिथि देवो भव ये होता है मेन मोटो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। और यही आज बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कोरोना वायरस के इस चक्कर में। आज मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताने वाला हूँ इस पार्ट 1 में जो आपको बताएंगे कि कोरोना का आने से पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का क्या स्टेटस था। Earlier there were plenty of jobs before the COVID-19 arrives in whole world. In the hospitality industry there are plenty of jobs, but at comparison to Ghaziabad and Delhi, there are thinkings that in Ghaziabad there is 9 hours of working hours which was done by the hospitality industry staff, and in Delhi there is 16 hours shift. It's there, कोई आने का समय नहीं था, बस कोई जाने का समय नहीं था। आते थे लोग टाइम से, जाते थे कभी भी, कोई मतलब जाने का समय नहीं था। 16 to 17 आवर्स की एक लगातार जो शिफ्ट करनी पड़ती थी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोगों को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के स्टाफ को, वो चीज़ वो लोग करते थे। तो हम आज लेट्स वी स्टार्ट फॉर द आई डिस्कस द टॉपिक्स that the difference with where the hospitality industry before corona is the people were getting salaried, the people were getting amount, but not more than what they are spending their hard work towards the hospitality industry। मतलब जो भी hospitality industry के तरफ जो लोगों का वो रहता था कि उन्होंने उस काम के लिए उस मेहनत करी, मतलब 16 घंटे जो काम करते थे उसके हिसाब से जो सैलरी मिलती थी वो नहीं मिलती थी। वो आप मान लीजिए दिल्ली और गाजियाबाद के दोनों अलग अलग होटलों का, दिल्ली का मैं बता दूं 16 घंटे शिफ्ट कीजिए आपको सैलरी मिलेगी प्लस सर्विस चार्ज मिलेगा। वहीं आ जाइए आप गाजियाबाद के होटलों में, तो गाजियाबाद के होटलों में जो स्टाफ का वैल्यू रहता था वो आपका रहता था अराउंड 10 to 12,000 almost approximate salary of starting of assistant steward, which was after spending 4 lakhs in the hospital management course. After management 4 lakh you get the 8 to 10,000 salary, 10 to 12,000 salary, and in the Delhi you gonna get 16 to 18,000 salary after spending 4 lakhs on your hospitality course. So there's major difference. The major difference is that in the Delhi hotels, in the other states hotels, sometime in Rajasthan they will provide you the shelter, they provide you the food, accommodation and salary on also. So you have this and in the Delhi they will not provide you the accommodation, they will provide you the food. Food is definitely provided in the all the hospitality industry, where there were multinational companies like McD, KFC and burgers. So there major difference there in the hotel industry. People will come and they get the job easily. In the hospitality industry, the one thing which is majorly told that you will get the job, but it is important to how you survive in the job. So people left out the job, people go to the business. What happens after you spending the 4 lakh amount, that is the big amount you are spending, and after that you get the job in the hospitality industry with the generally amount of 16,000. But in the Delhi they are getting the service charge after GST also, because service charge and service tax is a lot more differences. Service charge is a charge which you give which is taken by the hospital industry for the services that are payable by the staff of the members. तो सर्विस चार्ज ये होता है कि मतलब जो भी अतिथि आते हैं वहाँ पे उनका सत्कार के लिए जो सर्विस की जाती है उसका जो चार्ज होता है वो लोग जो गेस्ट होता है वो देके जाता है, तो वो था सर्विस चार्ज। वो दिल्ली में आपको मिलता है, गाजियाबाद में आ जाइए वो चीज़ आपको नहीं मिलती। वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, खाली होटलों में खाली आपको सैलरी मिलेगी और बस शिफ्ट का टाइमिंग आपका 9 घंटे का रहेगा, बस ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में आपको ना तो टाइमिंग की शिफ्ट की पड़ी है ना कोई है। ट्रेनिंग करने जाओगे, ट्रेनिंग में अमाउंट जो मिलता है वो मैक्सिमम अलग अलग होटलों में किसी में 1500 है, किसी में 2000 है, वहीं दिल्ली के होटलों में जाओगे तो 200 है, तो अलग अलग है। ये सब भी कुछ
रहे हैं डिस्क्वालिटी। सेकेंड डिस्क्वालिटी जो रही है, एक तो मैंने आपको बता दी कि कैसे सैलरी और वर्किंग आवर्स में डिफरेंस है, दोनों के तरीके में कहीं भी चले जाइए हर एक में कैसे मतलब कैसे वर्किंग आवर्स में और कैसे एक आर्मी की तरह हम लोगों को काम करना पड़ता है। मतलब हम लोग सेकेंड आर्मी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम लोग 16-16 घंटे एक बंदा काम कर रहा है। भले ही वो आप चले जाइए वहाँ 9 घंटे, लेकिन 9 घंटे हम लोग खड़े हैं, वहाँ पे खड़े हैं। इस चीज़ के लिए हम लोगों को ट्रेंड किया गया है, इस चीज़ के लिए हमको सिखाया गया है, और 16-16 घंटे हम लोग आगे भी खड़े रहेंगे, उस चीज़ के लिए भी हमको ट्रेंड किया गया है। तो इन सब के लिए तो हम तैयार हैं, ये सब चीज़ हम करते हैं, ये सब कुछ हम करते हैं। हम अपने से पहले अपने गेस्ट का देखते हैं, उसमें से कोई भी गेस्ट भड़काऊ भी आ जाता है, कोई सिंपल भी रहता है और कोई हर चीज़ में। दैट्स मेजर डिफरेंस टाइप्स ऑफ गेस्ट। सो we move to the next part of this video, that is I will tell you the status, I have tell you the salary basis, I am telling you the what's the difference that not increasing the salary and not getting the people getting the promotions as much as higher comparison to engineering industry or things industry. I will tell you that. So there is major difference between that because in the around head there are many people who were around 10th or 12th pass and they are getting the job with low amount salary. They are the hospitality industry, what that it is taking the advantages of that people which was come to them, and for the 8,000 only, because of they were not known about the things, but they know the how to make the food. बस उन्हें बस यही चाहिए कि अपने स्टाफ से कि हमारा स्टाफ काम कर रहा है, काम करना आता भैया, 10वीं पास है 12वीं पास है, तो वो चाहे उसको काम करना भले ही आता है, हम उसे सैलरी भी कम दे देंगे तब भी वो रहेगा, क्योंकि उसको पता है। तो पीपल हैव बीन वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सिंस 40 years, since 25 years, since 20 years. That means major difference between that, and it is capable of that. इसके कारण जो हो रही है, एक तो लोगों का यहाँ पे प्रमोशंस नहीं हो पा रहे हैं, और उसके बाद लोगों को वो सैलरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपसे कम करने वाले सैलरी बहुत वो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं 20-30 साल से, इसलिए हम आपको सैलरी कम ही देंगे। यही पीछे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पीछे रूल रहा है, ये सब चीज़ें रही हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो यही सब मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में, क्योंकि मतलब आप समझिए कि कैसे एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पार्ट कैसे चेंज होने वाला है, कैसे मतलब चेंज हो गया है। रूम आपके फुल रहते हैं, हर चीज़ आपको कम रहती है, लेकिन आदमी को सैलरी देने जाओगे तो वही कम मिलेगी। भाई ये कहाँ का नियम है, ये क्या चीज़ का है? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसके चीज़ों के खिलाफ आपके लिए सवाल उठा रहा हूँ, मैं ये कभी नहीं कह रहा कि आपके लिए वो सवाल उठा रहा हूँ। मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के खिलाफ सवाल हूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। तो इन सब चीज़ों को मैं इन सब चीज़ों के बाकी मैं बता दे रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कैसा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे करना है, कैसे मतलब करना है, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको जो मैंने दिया हुआ था उसमें उस चीज़ के बारे में बताया था। आज मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 का कैसा एक वीडियो था, नॉर्मल पार्ट 1 का वीडियो था, ये कैसा मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है कोरोना के पहले क्या था। रूम भरे हुए थे, सब कुछ चल रहा था आराम से, हर एक आदमी सैलरी के लेकिन काम कर रहा था, कभी किसी ने सैलरी के लिए कुछ कहा नहीं। हर चीज़ को जिसको जो अच्छा मिल रहा था वैसा वो हर चीज़ ले रहा था। वही मल्टीनेशनल कंपनीज की बात ले लीजिए, जैसे हो गए आपका मैकडी, ये लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम रखते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बच्चों के लिए, तो उन सब में भी आपको अच्छी खासी सैलरी वहाँ पे देखने को मिलती है। वहाँ भी आपको 20 to 23,000 में देखने को मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, और जहाँ पे आपको अराउंड 11 आवर्स की वर्किंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत वो करना पड़ता है। उसके लिए भी बहुत लोग बच्चे उसमें देते हैं। ओब्रॉय का OCLD, हर साल OCLD को पार करने के लिए कम से कम 2.5-3 लाख बच्चे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ओब्रॉय बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ देता है। ओब्रॉय प्रोवाइड गुड फैसिलिटीज़ टू इट्स एम्प्लॉयज़, ओब्रॉय प्रोवाइड गुड सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉयज़, ओब्रॉय प्रोवाइड गुड थिंकिंग टू इट्स एम्प्लॉयज़,
Oberoi is one of the better hotels in India, and this is the main reason of the salary and the growth opportunity in the hospitality industry, जिसके कारण आज बहुत सारे जितने भी मैक्सिमम बच्चे हैं अपना 2 साल इंडिया में काम करते हैं और फिर उसके बाद बाहर चले जाते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे एक चीज हो रही है कि हमारे जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे, वो आपके बाहर चले गए। मतलब इंडिया ने आपको एजुकेशन दी, सब कुछ दी, आप लोग फिर बाहर चले गए। तो उनके कारण भी आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो उसका जो क्या हो रहा है, एक सीधा सीधा नुकसान इंडिया पे हो रहा है। क्योंकि एक चीज बात मानिए कि आप अपना जो स्किल लेवल आप 4 साल में एक तैयार कर रहे हैं, उसके बाद 2 साल काम किया, वो 4 साल 6 साल बाद आपको मतलब चला जा रहा है। एक स्किल आपने तैयार किया और दूसरी होटल इंडस्ट्री मतलब दूसरी कंट्री को आपने दे दिया, ये लो भैया हमने तो बना बनाया माल आपको दे दिया, आप रख लो, आप चला लो, ठीक है। यही चीज हो रही है और इसी के कारण जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का गवर्नमेंट सेक्टर है, जिसमें एक खाली आपका आता है, दिल्ली के कुछ होटल्स आते हैं, दिल्ली के कुछ इनका वो करता है, तो इसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट ने ज़्यादा नहीं सोच रखा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जबकि बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है किसी भी गवर्नमेंट की इकोनॉमी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के चीज़ के लिए, किसी भी गवर्नमेंट की उसके लिए, तो ये सब बहुत है। ये सब किसी भी गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर सकता हूँ, किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो वहाँ का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। तो उस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए कम से कम गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए, तो मैं आज अपनी बात को यहीं पर आज विराम देता हूँ। वी क्लोज दिस मैटर ऑन नाउ एंड आई विल मूव विथ यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पार्ट 2 विल बी लॉन्च टुमारो ऑन 7th day part 2 7th YouTube video at the rate 12 PM at Round Blogs channel. Thank you.